Hello, ma'am. How are you? Good. Thank you. Good afternoon, friends. Today I have a guest. He originally, as he has told me, he comes from Haridwar. So that's the spiritual place. I think the world, everybody, the Beatles and everybody, they've been to Haridwar. Yeah. So, Sir Gyanendra Bharti ji is into a lot of things. He's into spiritual sciences in the fields of Vastu, Reiki, Pranic healing. And today we are at the Imperial Hotel at the Crystal Ballroom. So he is going to be part of a panel discussion. And that's it. That's the introduction. So it's over to you, sir, about your life, your career, and about your event today, sir. Yeah. Little loud, sir. Sanjay ji, I want to tell you about my life for more than 30 years. It was my passion to read about Feng Shui, Vastu, martial arts and healing therapies and all these things. So over the period of time I started seeing the changes in my own life, that things are getting better and better. Then I started using all these techniques with my friends, my family members, and slowly it becomes from passion to profession. It transformed actually. And of course I was living in Haridwar, and it is a very holy place. And I had the opportunity to meeting many religious people, and as I was very keen to do yoga and meditation and all these things, so I had all the opportunities to do all these things. But my main passion was to solve the problems of people. So I was kept on learning and reading about all these things, and putting my emphasis on the techniques which I can give to people and they immediately can change their life. Be it Vastu, be it Feng Shui, be it astrology, be it numerology, be it graphology, it could be anything. But I just wanted to help people out. So slowly, I started combining all the group of things, all these healing therapies or spiritual sciences or occult. I just made a combination of all these things, and I created this platform Vastu Wisdom. So Vastu is the part where we are looking at the energies and the other permutation combinations of your entrances, your directions, your 5 elements, your As for the Vastu Purush. mandalas and everything. And the wisdom part takes all the other things, like I even check the mindset and belief system of person also to solve their problems. So my passion of learning and reading of last 30 years actually ultimately fruitful become is like a flower in terms of Vastu wisdom. Very nice, sir. Now coming to Vastu wisdom, तो जैसे आपने बोला वास्तु and wisdom, so there are two different subjects. People who understand astrology and all this, so they would say Vastu is primarily for the architecture of a house. How do you, the layout and design. And since this, your Vastu wisdom is clubbed and it includes everything under the sun, be it palmistry, be it numerology. Yeah. So when we talk about these sciences, and then we talk about destiny. So some people, like yesterday I met a film star. She's Deepika Singh. She has worked in a serial Diya Aur Bati, very famous. Tomorrow her movie Titu Ambani is being released. She's married to a director, Mr. Goel, I think in the sets, and So I asked her for an autograph. I think nobody today is asking for autographs. I just asked casually because I'm her fan. So sweet of you. So she, has written that do not neglect your health and keep on doing your work, and destiny will follow you. So I have actually taken that picture in my mobile today morning. Very good. And so I said, I was thinking, we are saying our destiny is like that. She says, work hard and destiny will follow you, jo karma. So what is your say on that, sir?
No, she is perfectly right in whatever she was saying. But my take is a little bit broader. Right. In a way, when we are talking about destiny or luck, actually we have three type of luck. हम तीन तरह के भाग्य को लेकर चलते हैं जो हमको इम्पैक्ट करते हैं. अर्थ लक, हेवन लक और ह्यूमन लक. अर्थ लक वो जिस जगह पे आप रहते हो या आप काम करते हो उस जगह की एनर्जीज कैसी है, वहाँ का वास्तु कैसा है. हेवन लक जो स्टार्स आप लेकर पैदा हुए हो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन आप देखोगे ना, कई लोग हैं वो हमेशा पैसा ही कमाने के उसमें रहते हैं. कई लोग हैं वो वर्केहोलिक्स हैं, उन्हें काम करने से मतलब पैसा मिले ना मिले, दे डोंट केयर. कई लोग हैं जो इमोशनल है बहुत ज़्यादा, वो 10 बार धोखा खा चुके हैं फिर भी लोगों की हेल्प करेंगे. दीज आर सम, एक तरह से एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर है जो हमको मिल जाता है. ये हेवन लक हो गया. इन अर्थ लक और हेवन लक को हम कंसीडर अगर ना करें तो हमारे पास 33 लास्ट का रह गया, दैट इज ह्यूमन लक. एक्चुअली वो जो बात कर रही थी वो ह्यूमन लक की कर रही थी. आप क्या कर सकते हो, आप अपने खाने पे कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो. आप डेली एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना सकते हो. आप मेहनत ज़्यादा करके अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो. Right. या अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो. लेकिन अगेन मैंने क्या बोला, दैट इज ओनली 33%. 33%. वेरी लॉजिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली 33%, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल है. ये जो दो पार्ट है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं मिलता जो इसको एक्सप्लेन कर सके कि भाई आपका सॉफ्टवेयर क्या है, आपको ऐसे ऐसे जीना चाहिए. जबकि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हर आदमी पैसा कमाने के लिए पागल है. नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से आपकी हॉरोस्कोप के अंदर जो वीनस है वो पैसे को रिप्रेजेंट करता है. वीनस के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है, आप अगर उसके हिसाब से काम करेंगे आपकी लाइफ में पैसा आ जाएगा. इट इज सो सिंपल. ये नेचर ने दिया है आपको. लेकिन अगर आपको उसे पढ़ना नहीं आता तो आप उन खाली मेहनत करते रहोगे. लेकिन इधर क्या है, वो मेहनत करनी किस तरीके से ये आपको नहीं पता है. द प्रॉब्लम इज दैट, क्योंकि वहाँ पर अगर राहु है तो यू विल हैव टू शो इल्यूजन, और अगर केतु है तो यू हैव टू बी कंप्लीटली इंटेंशनल. आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा. कितना फ़र्क आ गया. एक काम ऐसा है कि जिसमें आपको लुई विटॉन के कपड़े पहनकर जाने हैं या उसकी चीज़ों को रखना है, वो राहु हो गया. लेकिन एक क्या है कि आप फकीर बन के भी जाओगे ना तो ज़्यादा पैसा मिलेगा. Right. तो द पॉइंट इज़ कि वो जो अर्थ लक और हेवन लक है उसको समझने वाला कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आगे बढ़ने में 2 मिनट लगते हैं. Perfect. I think Gyanendra ji, what you have told, it's really wisdom, and you're sharing. And I just thought, does all these 3 elements, do they add to 100%? Yes. Achha, because 33. No, it is like an only an example I was giving. Right. अब ये हमारे पे डिपेंड करता है. अब मैं कहता हूँ 34 हम उसको मान लेते हैं अपने ह्यूमन लक को. Yes. क्योंकि दैट इज इन अवर कंट्रोल. Right. दैट इज समथिंग वी कैन डू ऑन अवर ओन, कि मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ. Yes. जैसे हम अर्थ लक की बात करें तो जियोपैथिक स्ट्रेस होती है. ज़मीन के नीचे सर्टन निगेटिविटीज़ होती हैं. उसके लिए सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे हम लोग चेक करते हैं. वो हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है. अब हो सकता है किसी आदमी को बीमारी हुई तो ह्यूमन लक के हिसाब से क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अपने खाने पीने को चेंज करेगा, एक्सरसाइज करेगा, दवाई टाइम पे ले लेगा. लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे सो रहा है जहाँ पे निगेटिव एनर्जीज पास ऑन हो रही हैं तो उसके साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं. वो बेचारा दवाई खाता रहेगा और बीमार पड़ा रहेगा. Right. लेकिन अगर वो उसको भी कवर अप कर देता है तो 34% तो वो था, इधर से 33% मिला और वो 50 से क्रॉस करते ही वो हील होना शुरू हो जाएगा. Perfect. Very nice. And I think nowadays when you said healing, तो healing के there are a lot of mantras also. जैसे अपना नमोकार मंत्र है, जो ओम मंत्र है, गायत्री मंत्र. तो how powerful are these mantras in healing? मंत्राज और एक्चुअली हमको मंत्राज पे जाने की जरूरत नहीं है. Right. एवरी मोमेंट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग इज ऑल्सो अ मंत्रा. Right. आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप पूछें काम कैसे चल रहा है, अरे कुछ नहीं यार सब बेकार है. आदत है उनकी, हो सकता है काम उनका अच्छा चल रहा हो बट वो कहेंगे यार इसे क्यों बताऊँ. बट जब वो बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं. अगर उन्होंने 4 बार ये दोहराया कि यार मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी. बिकॉज वॉट एवर यू आर स्पीकिंग इम्पैक्ट योर लाइफ. Exactly. इट इज़ कॉल्ड सेल्फ टॉक. खास तौर पे अगर हम मंत्रों की बात करें तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसे सिलेबल्स उन्होंने पकड़े जो एक सर्टेन एनर्जी क्रिएट करते हैं. जैसे एक मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः. आप ये बोलेंगे तो आपको पावर फील होगी. Yes. अगर आप इसको बोलते रहेंगे. लेकिन है क्या, मंत्र भी कौन सा करना चाहिए ये आपके हेवन लक से आता है. आपके 5th हाउस के अंदर हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट बैठा है ये डिसाइड करेगा.
कि आपको कौन सा मंत्र करना है, वो आपको इमीडिएट इम्पैक्ट देगा। वरना मंत्र तो हर दूसरा आदमी को पता है, कर कौन रहा है। Absolutely true. लेकिन अगर वो वाले मंत्राज आप करते हैं तो इमीडिएटली यू विल फील Right. So since today you are at the Imperial Hotel Delhi, and we have the people like from the ex Doordarshan ki Salma Sultanji Ayengi and so many other peoples are going to be there, and the happiness quotient. So what is your now you're going to go into the talk. You're going to be like for 2 hours. So if you want to give, what is going to be the key points on which you're going to discuss today? My key point is only this, that I'm going to talk about happiness. हम जानते हैं हैप्पीनेस हर इंसान के लिए अलग अलग है। कोई आदमी कहता है मेरे बच्चे की शादी हो जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, किसी के लिए उसके पेरेंट्स की हेल्थ उसकी सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। कोई इंसान कहता है अगर मैं अपने पैशन को जी पाऊँ तो मुझसे ज़्यादा हैप्पी कोई नहीं होगा। ये जो हैप्पीनेस को हमने रिलेट किया उन इश्यूज़ के साथ जिनको करने से हमें हैप्पीनेस मिलती है। अगर इनको करने के लिए मैंने इतनी देर संजय जी से बात करी है कि ये सारे एस्पेक्ट अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम उन चीज़ों पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि वी आर नॉट दैट पावरलेस। ऐसा नहीं है कि हमें होपलेस हो जाना चाहिए, हम उसको टच नहीं कर पा रहे। अगर हम किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो उन चीज़ों को समझ सकता है, हमारे लिए हमारे अर्थ लक को, हमारे हेवन लक को वो इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली, तो इन समस्याओं को सुलझाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इनके ठीक होते ही आपकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस होगी और कुछ भी नहीं होगा। So thank you very much. I think we'll sum it up now. And last cheese, we recently, I'm talking about movies, because जनता जो है, the public at large, I think they are more influenced by the theatre, the movies. So there was a movie जिसमें they have shown that about a divorce, like, and हमारे समाज में you are observing that today we are trying to become a very progressive society. But the problem, the nucleus family, joint families पहले break हुई, फिर कुछ लोग जो nucleus families में है, wife is working, husband is working, either they don't have children, अगर बच्चे हैं तो nobody is taking care of them. So they realize, there are articles in a lot of newspapers, Times of India, India Today surveys, ki people are wanting to go back to the joint family system. But why are we having this more divorce? Why are the women walking out of the marriages? If you want to say anything about that, sir. No, definitely. Just as I told before, कि अगर वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना रखा है या किचन बना रखी है या हमने उसको डाउन कर रखा है या वहाँ पर प्लांट्स रखे हैं, तो वो हमारी रिलेशनशिप्स को ख़राब करने का काम करता है। ऐसे ही देयर इज़ अ डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल का जोन है, अगर उसके अंदर हमने अपनी शादी की एल्बम रखी हुई है तो देयर आर चांसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर थिंग, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली पकड़ेंगे तो 6th हाउस अगर किसी का एक्टिवेट हो रहा है और 1st हाउस एक्टिवेट हो रहा है यानी उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ अटैक करती हैं आदमी पे, तब जाकर इतना मेजर डिसीजन होता है। अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में होती है। पहले मीन्स आई बिलीव अबाउट 20 years बैक डिवोर्सेस तो होते रहे हैं, बट नाउ विद द अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, इट्स गेटिंग मोर इनटू द थिंग। बट एज यू सेड कि पीपल नीड टू ऑल्सो लुक इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स, जस्ट एज आई टोल्ड यू कि जो ह्यूमन लक की हम बात करते हैं कि अब ये आदमी को या औरत को सोचना पड़ेगा कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू टू अवॉइड इट। राइट सर। तो उसके लिए उनको ये सारे मैं तो चीज़ों को 360 डिग्री व्यू से देखता हूँ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कि वॉट एवर वी कैन डू टू चेंज आ सिचुएशन टू अवर बेटरमेंट, वो सब हमको ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पर डिवोर्स एक मजबूरी बन जाती है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए और करना चाहिए। राइट, परफेक्ट। सर, आपके कोई जाते जाते कोई आप 2-4 मंत्र आप सुनाना, मतलब व्हाट इज योर लाइक यू वांट टू गिव सम मैसेज, सोशल मैसेज? मैं सोशल मैसेज तो नहीं देना चाहूँगा, मैं एक बहुत अच्छी सी टेक्निक आपको देना चाहूँगा। वो टेक्निक ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो मैं 3-4 लाइनें आपको बोल रहा हूँ, आप इनको रोज़ दोहराएं। ये इस तरह से है जैसे हम किसी गार्डन के अंदर अगर कुछ बीज डालते हैं तो वही पौधे उगते हैं। ऐसे ही आप रोज़ सुबह स्प्रिंकल आपको करने हैं। जैसे नंबर 1 थिंग इज़ व्हाट इफ़ टुडे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ।
What if today I am going to meet the best person in my life who is going to change everything for better and forever? What if today I am going to make the best deal of my life? What if today I am going to get the best experience of my life? आप इसके अंदर कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टेक्निक विच आई माई सेल्फ प्रैक्टिस टू गेट हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन all the time. Thank you. Thank you so much. Sir has given, I think, जो jewels of wisdom he has shared, and सब लोग आप लोग कोशिश करिए कि जीवन में खुश रहिए और अपने आसपास अपने परिवारजनों को भी खुश रखिए, तो आपको तरक्की and success will come in your own way and fame. Thank you. Thanks.